minutes, I think it's good enough for you, I think. Yes. Yes, it's good. All right, so I will continue. Let's continue our study. We thank God for another opportunity He's given us to study God's word even today. और आज फिर से परमेश्वर ने हमको इस प्रकार से एक और अवसर प्रदान किया कि हम उसकी वचन से सीख पाए, इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। और चलिए हम आज का अध्ययन को जारी रखते हैं। All right, now yesterday we continued with our study. We finished till Etham. Now we'll move to the next station. और जैसे कि कल का अध्ययन को अपन ने खत्म किया था एथाम पर, और आज हम अपना अध्ययन को जारी रखेंगे और चौथा स्थान जहां पर जो इस्राएलियों का पड़ाव किया था उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। I hope you can see my screen, Deepu. Yes, sir. It's very clear. All right. Okay. So the next station that we're going to study today is Pihahirot. और जो अगला स्थान है जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम है पीहाहीरोत। All right, Deepu, is my voice still breaking? Is it not clear still? Yes, sir. Sometime your voice is breaking. All right, so let me do one thing. Just hold on. Just give me 2 minutes. I will switch on to my iPad and I will just keep. जब तक हम एक गीत गा लेते हैं प्रजेश भाई। जी बिल्कुल, गीत गाएं। हाँ, ये बात छोटा सा। चलिए ठीक है। रिकॉर्डिंग रोक देने। I'm able to see you. All right, okay. So I think this is better. I'm logged in from my iPad. I don't know what's happened to my Wi-Fi. I will have to check this out today. So let's continue. All right. I'm extremely sorry about the delay. Sorry about that. And all right, as long as you can see me is fine. All right. So today we will continue for our study with Pihahirot. और आज हम लोग अपने अध्ययन को जारी रखेंगे, पीहाहीरोत स्थान से शुरुआत करेंगे। Right. So let's read two portions which will talk about Pihahirot. Let's read Exodus chapter 14 and verse 2. और चलिए हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय दूसरा आयत को हम लोग पढ़ेंगे। और कोई एक भाई गिनती की पुस्तक 33 अध्याय उसका 7वीं आयत निकाल करके रखे और जल्द से हमको पढ़ने में मदद करें। निर्गमन चैप्टर 14:2। इस्राएलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सम्मुख वाल्सपोन के सामने अपने डेरे खड़े करें, उसी के सामने समुद्र के तट पर डेरे खड़े करें। All right, let's also read Numbers 33 and verse 7. Numbers 33 and verse 7. और एताम से कूच करके वे पीहिरोत को मुड़ गए जो बाल सपोन के सामने है और मिगदोल के सामने डेरे खड़े किए। All right, okay, thank you very much. Now these two verses that we read points out the next station which the children of Israel are traveling in their expedition, which is Pihahirot. और अभी हम लोग इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि ये जो पीहाहीरोत है ये इजरायलियों का यात्रा जो मरु यात्रा वो कर रहे थे उसका अगला व चौथा स्थान है जहां पर उन्होंने अपने डेरे डाले व पड़ाव किया। All right, now the meaning of this, Pihahirot means it's the mouth of the gorges, which means where a river ends and then it opens up into a big desert. You see, imagine that a river is flowing and the river ends in a place and then it is opening into a big wilderness, in a big desert. That is the meaning of Pihahirot.
और जो पिहा हीरोत का स्थान का जो पिहा हीरोत नामक स्थान का जो अर्थ है वो इस प्रकार से होता है कि जहां पर जो नदियां बहती हैं वहां पर जब वो अंत होती हैं उसके बाद में जो एक बहुत बड़े जंगल का शुरुआत होता है और बंजर भूमि का शुरुआत होता है। उसी जो पिहा हीरोत स्थान का मतलब है कि वो जंगल स्थान का शुरुआत का मुंह। Right, exactly. So that now what's happening in from Pihahiroth, they are going to start their desert journey. और यहाँ से क्या कर रहे हैं वो पिहाहिरोत से इजरायली लोग अपनी जो जंगल की यात्रा को शुरुआत करेंगे। All right. So long they were some Bible scholars also mentioned that this is also called Pihahiroth is also called the Freedom Valley, because until now everything that they were able to do whatever they feel like, but from now onwards when they are going to move on, it's a very restricted path. It is very limited, and there is going to be a certain path that they have to follow. That is why Pihahiroth is also called a freedom valley. Go ahead. और जो है हम दूसरे बात इसका मतलब समझे कि जो बाइबल के जो ज्ञान करता है ज्ञानी लोग हैं इस प्रकार से वो बोलते हैं कि पिहाहिरोत का मतलब है कि एक स्वतंत्रता का झील, क्योंकि अभी पिहाहिरोत के स्थान तक हम देखते हैं इजरायलियों के जो मन में आया वो करते रहे, लेकिन अभी यहाँ से जब वो यात्रा करके आगे के स्थान को बढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत ही सावधानी बरतना होगा, बहुत ही निर्देशों का पालन करना होगा और नियम अनुसार वो अपने आप से सब कुछ काम नहीं कर पाएंगे। All right. Now, if you see the map on the screen, you will find out like what we did when we studied the Apostle Paul's missionary journey. This is a map which is closer to what we are studying, which I picked up. And on this, और यदि आप yes, go ahead, Deepu. और हमें इस बात को जैसे कि हमने प्रेरित पौलुस की यात्रा का जब हमने अध्ययन किया था तब भी हमने इसी प्रकार से नक्शे का प्रयोग किया था। आज हम फिर से उसी नक्शे की मदद से आज हम इस बात को मदद मिलेगी हमको सीखने में कि इजरायलियों की जो मरु यात्रा रही वो कैसे और कहाँ कहाँ और कब कब किस प्रकार से होते हुए वो गए हैं, तो ये हमारी मदद करेगा। All right, now so I'm going to plot here every location that we finished. So now if you see the arrow that comes in, the first is Ramesses, the second is Sukkot, the third that we studied yesterday is Etham, and now we are going to study Pihahiroth. और जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि जो हमने 4 स्थानों के बारे में इस्राएलियों की मरु यात्रा जहां से जब मिस्र देश से शुरुआत होती है तो सबसे पहला स्थान था वो था रामशेस, दूसरा था सुक्कोत, तीसरा था एथाम जो हमने कल अध्ययन किया था, और आज हम जो है चौथा अध्ययन जारी रखेंगे जिसका नाम है पिहाहिरोत। All right, we must also understand or keep in mind that they have not yet crossed the Red Sea. They are on the path towards the Red Sea. These locations are before crossing the Red Sea. और इस बात को भी आप अपने मन में याद रखना और याद रखना इस बात को कि अभी ये लोग जो पिहाहिरोत स्थान से जब यहाँ से जाते हैं तो अभी इन्होंने इजरायलियों ने अभी जो लाल समुद्र है उसको पार नहीं किया, वरन लाल समुद्र की ओर वो आगे बढ़ रहे हैं और उसकी ओर जो यात्रा में है उसके तट की ओर समुद्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। All right, okay, now this is a road map. It's a road map that you see on the screen right now. The first one is where you see a tick mark here. This means we have completed Ramesses. The second, we have completed Sukkot. The third, we have completed Etham. And the fourth right now is what we are studying is Pihahiroth, just for your information, and so that you can follow what we are doing and remember these places. और आपकी समझ के लिए जो है ये जो रोड का नक्शा आप देख रहे होंगे और ये यहाँ पर जो हरे 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 निशान लगे हुए हैं, आप उनसे यह चिन्ह इस बात को दर्शाते हैं कि जो जहाँ पर हरा पहला निशान लगा हुआ है वो रामशेस है, तो मतलब हमने इस स्थान को हमने अध्ययन कर लिया है। दूसरा है सुक्कोत, उसको भी हमने पूरा कर लिया है। तीसरा जो है एथाम जिसको हमने परसों कंप्लीट किया था, और आज हम जो पिहाहिरोत चौथे स्थान पर हैं। यह आपकी
जो आपको जाके अच्छे से स्मरण रहे, याद रहे और आप अच्छे से समझ पाए, आपकी जानकारी के लिए इस नक्शे को मैंने दिया है। All right. Okay. Now look at the next map or the next slide that you see. If you go back to Exodus chapter 14 and verse 2 that we read, can you go back to Exodus 14 and verse 2? There we read, order the Israelites to turn back and camp by Pihahiroth between Migdol and the sea camp, there along the shore across from Baal Zephon. You see that? Can you read it, Deepu? Yes, yes. इस प्रकार से हम जब निर्गमन की पुस्तक उसका 14 का 2 पढ़ते हैं, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौटकर मिगदोल और समुद्र के बीच पीहाहीरोत के सन्मुख बाल सपोन के सामने डेरे खड़े करें। Okay. What I want to show you in this map here, the one that I've circled here in black is Pihahiroth. और जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे नक्शा में, सभी लोग ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो सर ने जो काले कलर से जिसको गोला बनाया है, वो जगह है पिहाहीरोथ। All right. Now you must just follow my cursor, the red dot. They are traveling from here. You see the green line. This is from Ramesses to Sukkot. They are traveling and they are coming here all the way here. They came up to Etham, and from Etham, what they're doing is they're coming back again here to Pihahiroth. और जैसे कि आप जो हरी लाइन को वो देख रहे होंगे, वहां से वो रामाशेष से सुक्कोत से होते हुए ऐसे एताम को आते हैं। एताम से फिर वापस आगे अनुसार वो फिर मिगदोल में जाते हैं, वहां पर पिहाहीरोत को वापस दोबारा वहीं से लौटते हैं। All right, I'll explain that to you because that's very clearly in the verse there. What I want to show you here is in this map, what you see here is you got this place called Migdol. You see Migdol here, and then you see Baal Zephon. So Pihahiroth is between Migdol and Baal Zephon. That is what this map shows. और ये नक्शा दिखाने का उद्देश्य यही है जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि जो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मिगदोल और बाल सपून और मिगदोल के बीच का जो स्थान है वो है पिहाहीरोत। और ये नक्शा दिखाने का मतलब यही है कि हम इस बात को समझ पाए कि पिहाहीरोत मिगदोल और बाल सपून के बीच में है। But now, when you look at verse 2, the beginning of verse 2 says, order the Israelites to turn back and camp by Pihahiroth. You see that there? और जो निर्गमन की पुस्तक 14 अध्याय उसका 2 वचन बहुत ही साफ तरीके से सीधा सीधा बताता है, इजरायलियों को आज्ञा दे कि वे लौट कर मिगदोल और समुद्र के बीच पिहाहीरोत के सन्मुख बाल सपून All right. See, so डेरे खड़े करें। Yeah. So you see here this green line. Follow my cursor, the red one. Follow my cursor here. This is Pihahiroth. But before this here, where you don't see here, this is where Etham is. From Etham, they are coming down. They're going back. You see, this green is from Ramesses. They're coming up to Sukkot. Then they came up to Etham, and now they're going back again to Pihahiroth. That is what this verse mentions. और यहाँ पर जो जैसे कि जो वचन अभी हमने पढ़ा है उसके अनुसार हम इसी बात को समझ पाते हैं यहाँ पर कि जो हरी लाइन हमको दिखाई दे रही है वो रामासेस से शुरू होकर के सुक्कोत को होते हुए एताम आती है और एताम से आगे अनुसार वो लोग वापस जो है पिहाहीरोत तक आकर के वहां पर अपने डेरे खड़े करते हैं। All right. Now this is with the purpose. God told them to backtrack their steps, to go back in their progress. God has done it with a purpose. और परमेश्वर ने जो है एक उद्देश्य के साथ में ये इस कार्य को परमेश्वर करते हैं कि वो एताम से वापस लौट करके आए और पिहाहीरोत में डेरे खड़े करें। उसके पीछे एक उद्देश्य था प्रभु का। Now in the next map, if you see here, you see the green line. Follow the green line. This is from where they're traveling. They're coming from Ramesses. They're coming all the way here. Then they cross Sukkot and they're traveling, coming all the way. You see Etham. From Etham, see here, they're coming back here to Pihahiroth. You see, this is the one which I've shown an arrow here and black circle.
This is Pi-hahiroth. You see how they are progressing, and then from Etham they're coming back here. That's what the scripture says. और जो जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है उसी प्रकार से हम इस नक्शे में देख सकते हैं कि ये नक्शा जो है रामा से शुरू होकर के सीधा जो उनकी यात्रा को जो होते हुए वो रामशेष से होते हुए सुक्कोत से आते, सुक्कोत से फिर एताम जाते हैं। इस प्रकार से वो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर की वचनानुसार व आज्ञा अनुसार वो वापस लौट करके पी-हाहिरोत और बाल-सपोन के सामने डेरे खड़े करते हैं। All right. Okay. Now I will share all these things after today's study, all that we have studied so far, all the 3 locations, including today 4. I will share this PPT with you. So in your time when you're reviewing and studying these things for your further study, it will be useful to you. That's why I've given those maps for you to understand. और आपको समझने के लिए जो है मैंने जो आज के और ये 3 और हमने स्थान को अध्ययन किया है और उसकी में जो छाया है जो इसकी जो पीपीटी है वो मैं आपको साझा कर दूंगा, भेज दूंगा, ताकि आप जब इसका अध्ययन करें तो अच्छी रीति से आप इसको समझ करके इसका अध्ययन करने पाए, इसका लाभ उठाने पाए। All right, from Exodus chapter 14, let's read verse 9. चलिए हम लोग निर्गमन के पुस्तक उसका 14 अध्याय 9वीं आयत को पढ़ते हैं। पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास जो पी-हाहिरोत के पास बाल-सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। All right, there you read, now we understand the reason why God told them to come back. God was drawing the enemy for a defeat. And you see in verse 9, what is mentioned very specifically, the Egyptians chased after them with all the forces of Pharaoh, the horses, the chariots, the charioteers, the troops, all caught up with the people where they were encamped at Pi-hahiroth. You see, the purpose why God allowed them to backtrace and come to Pi-hahiroth is to make sure that the enemy, there is a purpose in the Lord allowing this to defeat the enemy. और यहाँ पर आप इस बात को देखिएगा और इस बात को वचन 9 को बड़े ध्यान से पढ़िएगा कि परमेश्वर ने आखिर इस्राएली को क्यों कहा था कि तुम जाकर के पी-हाहिरोत के पास अपने डेरे खड़े करें। उसका उद्देश्य, उसका परमेश्वर का जो योजना था, हम यहाँ पर वचन 9 में देख सकते हैं। और हमने पढ़ा जैसे कि पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री की सेना उनका पीछा करके जो पी-हाहिरोत के पास बाल-सपोन के सामने डेरे खड़े करे थे उनको पास जा पहुंचे, उनके पास जा पहुंचे। परमेश्वर की योजना थी। Yeah, so while they waited in Pi-hahiroth, it was as if they were waiting for Pharaoh to come and kill them, or Pharaoh to come and attack them and defeat them. It appeared to the Israelites like that. और इजरायलियों की नजरों में ऐसा लगा कि उनको ऐसा लगा कि हमने यहाँ पर पी-हाहिरोत में आकर के ऐसा कि हमको यहाँ पर डेरा खड़े किए ताकि फिरौन आकर के हमको पकड़ के ले जाए और हमको नष्ट करते, हमको मार दे, ऐसा उनके मन में विचार आया। Brothers and sisters, sometimes in our lives it happens when we have to wait on the Lord. We have to wait. It will appear to us that the enemy is taking control of us. The enemy is overtaking us. People who are against us are given an opportunity to speak bad about us. That is how it appears. But don't conclude anything. Wait patiently. That is what we're going to see now. What God did to the children of Israel when they waited patiently in Pi-hahiroth. और आप इस बात को देखिए मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, इस प्रकार की बातें परिस्थितियां हो जाती हैं और हम कई बार इस प्रकार से बहुत ही ज्यादा दुखी व निराश हो जाते हैं जब लोग हमारे बारे में या हमारे किसी काम के बारे में कुछ भी कहते हैं। तो हम कई बार क्या करते हैं मेरे प्यारों, हताश से निराश हो जाते हैं। एक बात कहना चाहूं कि आप इसका वहीं पर अंत ना करो, धीरजता के साथ में प्रतीक्षा करो परमेश्वर की। और उसी बात को हम देखते हैं कि इजरायली लोगों के जीवन में जब उन्होंने प्रतीक्षा किया धीरजता के साथ में, तो क्या वहां पर कार्य करते हैं परमेश्वर, इस बात को अभी हम
पिहा हेरोद से और इजरायलियों के और फिरौन की सेना के बीच में जो होता है उससे सीखेंगे। All right. Okay. Now, from Kadesh Barnea, the place to Canaan, the land that God had chosen, was the shortest route that took only about 11 days. That would normally take only 11 days. You considered this long time back, but I'm refreshing your memory. From Kadesh Barnea to the land of Canaan was only 11 days that it would have taken to occupy that place. और इस बात को आपको याद दिलाने के लिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कहना चाहता हूँ, कादेश बर्निया से लेकर के कनान देश केवल बहुत ही छोटा रास्ता था, और वो केवल 11 दिनों में ही, मात्र 11 दिन के अंदर ही वो वहां पर पहुंच करके उस कनान देश को अपने अधिकार में ले लेते। लेकिन से नहीं होता है। Yeah, now the children of Israel are traveling towards the direction of Kadesh Barnea. This is how they were traveling. But the Lord made them from Etham to come back and stay at Pihahiroth for a purpose. And we all know the purpose was to defeat the Egyptians totally, to devastate them, so that henceforth the enemy can never attack them. और हम यहाँ पर देखते हैं इजरायलियों के जीवन से कि इजरायली लोग जो है रामा से सुक्कोत से होते सीधे एथाम को होकर के वो कादेश बर्निया की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन परमेश्वर के निर्देशानुसार परमेश्वर ने उनको एथाम से लेकर के फिर से वापस आने के लिए और पिहा हीरोत के पास डेरे डालने के लिए खड़े किए। उसके पीछे का उद्देश्य ये था, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि परमेश्वर की योजना ये थी कि वहां पर पिहा हीरोत में लाल समुद्र में सेना, जो फिरौन की सेना है, वह मिस्री सेना जो उनका पीछा करते हुए आ रही थी, उनकी दुश्मन थी, उनको पूरी रीति से उनको नाश करते, उनको नष्ट करते, उनको हरा दे, इसीलिए ताकि आगे चल करके उनको और कोई दुश्मन ना रह जाए। से ऐसा करने के लिए परमेश्वर ने उनको एथाम से पिहा हीरोत वापस लेकर आए। All right. Now the Israelites were traveling, and they were traveling. Their ultimate purpose is to come closer to Hebron, and then come into the promised land, which is Canaan. That was उनका ऐसा उद्देश्य था, ऐसा अपने मन में विचार था कि हम जो है यहाँ से सीधे हेब्रोन होते हुए, हेब्रोन के बाद में फिर तो हम सरल तरीके से कनान देश में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसा उनका सोचना था। All right. And Hebron is in Kadesh Barnea. Kadesh Barnea was the location that they were heading towards, and that is the beginning of the Philistine territory, Kadesh Barnea. और लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो कादेश बर्निया है जिसकी ओर वो बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे, हम जानते हैं कि कादेश बर्निया जो हेब्रोन के होते हुए, और हेब्रोन से वो लोग प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन जो फिलिस्तीन का जो सीमा आ जाता है वहां वो कादेश बर्निया के अंदर भी ही है। All right. Now in Kadesh Barnea is a place called Hebron. Hebron is in the east of Palestine, and this was the destination that the Israelites were planning to reach in their journey. और हेब्रोन जो है, कादेश बर्निया जो है, हेब्रोन जिसको कहा जाता है, जो फलस्तीनियों का एक शहर था जिसकी ओर इस्राएली लोग बढ़ रहे थे। All right. Now Hebron is a Palestinian city. हेब्रोन जो है एक फलस्तीनियों का शहर है। It is about 30 kilometers from Jerusalem. और यरूशलेम से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर यरूशलेम से एक हेब्रोन पाया जाता है। Now these days we have heard a lot, we read a lot about Gaza. We read a lot about that. That is in Palestine. Now Gaza, after Gaza is the most important Palestinian city. After Gaza, Hebron is the second largest Palestinian territory. और हम जो है, अब मैं कई बार, बहुत बार और बार जो है गाजा के बारे में पढ़ते हैं। गाजा जो है एक बहुत ही शहर था, और लेकिन हेब्रोन जो उसके गाजा के बदले में हेब्रोन जो है उस फलस्तीनियों के देश में, उनके शहरों में से
दूसरा सबसे बड़ा एक सीमा रखने वाला एक शहर था हेब्रोन। Yeah, Sema. I think it's the largest territory. So Gaza in these days is in Palestine, and Hebron is the scripture. The history says that Hebron is the second largest place in the Palestinian territory. This is just to show the relevance to today, to today's world. That is why I want to mention a few things about Hebron. और जो हम इस बात को जानते हैं कि गाजा जो है फलस्तीनियों के रूप में का एक शहर है, लेकिन और फलस्तीनियों की जो सीमा है, बॉर्डर सीमा के अंदर जो हेब्रोन है वो दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने हेब्रोन के बारे में कुछ सच व कुछ जानकारियां देना उचित समझा। All right. Now, and not only this, Hebron is the second most holiest city after Jerusalem. केवल इतना ही नहीं, वरन हेब्रोन जो है यरूशलेम के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पवित्र शहर माना जाता है हेब्रोन। All right. Now, Hebron is in Palestine, which is an Israeli occupied place. Palestine. और हम इस बात को जानते हैं कि हेब्रोन जो है वो फलस्तीनियों के समय से बॉर्डर सीमा के अंदर है, और ये हेब्रोन एक ऐसी जगह है जिसको इजरायलियों ने उस पर अपना कब्जा कर लिया था। All right, as on date, the Palestine is divided into two divisions, which is H1 and H2. और हम इस बात को जानते हैं कि जब फलस्तीनियों ने उस पर जब अपना कब्जा कर लिया था तो फलस्तीनियों को जो है दो भागों में विभाजित कर दिया था, H1 और H2. Yeah, H1 is controlled by the Palestinians. और H1 एक है जो वो फलस्तीनियों के द्वारा नियंत्रण उसका किया जाता है। And H2 is controlled by the Israeli military forces. और H2 है वो इजरायली देश की जो सेना है उसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है। All right, so in the controlled places, Israeli controlled places, about 700 Jewish settlers were settled down during the old times of Hebron. और हम इस बात को जानते हैं कि जो है H2 को जब इजरायली लोग उसका और इजराइल की मिलिट्री सेना जब उसका नियंत्रण कर दे, उस समय के दौरान 700 यहूदी लोग वहां पर जाकर के अपना जीवन बिता रहे थे। All right. Now Hebron, which is in Palestine, is known. It is an Israeli location earlier, but right now it is occupied by Palestine. So this Hebron is a busy commercial hub. It's known for a business. It's a business hub. और ये पहले के समय में इजरायलियों के अंदर में था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये फलस्तीनियों के नियंत्रण में आ गया है पूरी चीज से। लेकिन जो हेब्रोन है, हेब्रोन जो है एक व्यवसाय करने का एक हब है, एक स्थान है जहां से वो बिजनेस व्यवसाय बनोके करते हैं। Yeah, so products like grapes, figs, limestones are the ones that are used for whitewashing and all that. Then you got pottery and glass. These are the industries prevalent in Hebron, which is in that place of Palestine. और ये फलस्तीनियों के देश में जो हेब्रोन नामक जगह से जो व्यापार करते थे वो हो गए कि अंजीर हो गए और अंगूर हो गए और ये अन्य प्रकार के जो है फल वहां से व्यापार के द्वारा अन्य जगहों में भेजे जाते थे। Now Hebron is also known for dairy products, milk products. और केवल इतना ही नहीं, वरन हेब्रोन एक दूध का डेयरी जो दूध उत्पादन का डेयरी को भी माना जाता है। Now Hebron is also known for the paths there, the streets there are very narrow. They are small streets, but they are winding streets, and the roofs are all very low roof houses, flat houses, low roof houses is what history says about Hebron. और इतिहास इस प्रकार से बताता है हेब्रोन के बारे में कि उधर की जो गलियां हैं वो बहुत ही संकरी गलियां हैं, और वहां के जो घर हैं
वो भी उनकी जो छतें हैं वो बहुत ही नीचे और वो कम हैं। और इस प्रकार से इतिहास हेब्रोन के बारे में हमको जानकारी बताता है। So why is Hebron important? Why did I spend so much of time talking about Hebron? और हेब्रोन में के बारे में मैंने इतना ज्यादा इतना विस्तार से क्यों उस पर ज्यादा चर्चा किया, उसका उद्देश्य क्या है? Yeah, because Hebron is where Sarah have died and she was buried there. और हेब्रोन जो है एक याद हमको दिलाता है कि हेब्रोन एक ऐसे स्थान है जहां पर अब्राहम की पत्नी सारा को दफनाया गया था। You all remember that when Sarah died, Abraham wanted a place, and then that is when he bought Hebron, and that is where he buried Sarah. और हम इस बात को जानते हैं कि जब अब्राहम की पत्नी सारा जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसको जो है दफनाने के लिए अब्राहम ने जा करके इस हेब्रोन नामक स्थान को व जगह को उसने खरीदा था ताकि उसकी पत्नी को वहां पर मिट्टी दे। And not only that, Abraham also was buried there. केवल इतना ही नहीं वरन अब्राहम को भी वहीं पर मिट्टी दी गई थी। We also know that David, before he settled down in Jerusalem as the capital of his kingdom, he was ruling from Hebron. और हम इस बात को जानते हैं यरूशलेम को राजधानी बनने से पहले वहां पर हेब्रोन से ही उसका जो है उस पर जो है नियंत्रण कर रहे थे, उसका रूलिंग कर रहे थे। Right. Now, since then, quite often, even in the recent times, there are disputes that are happening between Israel and Palestine. और यहाँ से इसके बाद में फिर हम देखते हैं कि बहुत प्रकार के ऐसे जो है वार्तालाप ऐसे वाद विवाद इजराइल और फलस्तीन के बीच में होते रहते हैं। All right, and because this happens historically, it has been happening. People from Israel used to come and kill people who are occupying Palestine. Palestine used to do it to the Israel. That continues even till today. और जैसे कि पहले ये समय में ऐसा होता था कि इजरायली लोग जो फलस्तीनी लोग आकर के इजरायलियों को मार देते, उस पर कब्जा कर लेते थे, फिर उसके कुछ समय बाद में इजरायली लोग जाकर के फलस्तीनियों को मारते थे और उस पर कब्जा कर लेते थे। और उसी प्रकार का कार्य और प्रक्रिया यहाँ तक कि आज तक भी चल रहा है। The most important significance of this place called Palestine, you know what the old name is? The old name for Palestine is Canaan. और जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है रुचि और रखने वाली और हमको चौंका देने वाली बात यह है कि फलस्तीन का जो पुराना नाम क्या है जानते हैं आप? उसका पुराना नाम है कनान। And this place is where the northern and the southern kingdom, which is Israel and Judah, they all were in this place called Canaan, which today is being a part of that place is being called Palestine. और हम इस बात को जानते हैं कि ये फलस्तीनियों का जो हिस्सा है वह भाग है, इसमें जो उत्तरी राज्य व दक्षिणी राज्य दोनों यहूदा और इजराइलियों का राज्य इसी देश में व इसी फलस्तीनियों के जगह में वो अपने जीवन को यापन कर रहे थे। And it is in this place called Palestine, the Philistines were ruling at that time. You remember David and Goliath and all that. Now, the Philistines were ruling from this place. और हम इस बात को जानते हैं कि इसी समय के दौरान फलस्तीनियों के देश से फलस्तीनी लोग जो है उस पर राज्य कर रहे थे। और हम इस बात को देखते हैं कि गोलियत को भी दाऊद को भी किस प्रकार से वो नियंत्रण कर रहे थे। हम इस बात से समझ सकते हैं कि फलस्तीनियों के लोग उस जो है राज्य कर रहे थे उस समय में। I thought these will be some interesting facts for you, and that's the reason I pulled it out and I'm sharing it with you. और मैंने ऐसा सोचा कि ये बहुत ही रुचियात्मक बात होगी आपको समझने के लिए, इसलिए मैंने इसको Yeah. Someone is saying something? Yes, uncle. You are saying something? Yes, uncle. Just please, you touch little bit about the Kadesh Barnea, how the important of the Kadesh Barnea. Please, just 1 minute. Yeah, Kadesh Barnea is the place from where, let me go back to show you that thing. Kadesh Barnea is the entrance of the land. From Kadesh Barnea, it takes about 11 days journey to reach Canaan. Kadesh Barnea is that place
which is in the Philistine territory or the Palestinian territory. They have to cross it. Now it is called Palestine, but it used to be the Philistine territory. It used to be, and it is the land Canaan where the children of Israel had to settle. So we are talking about two things. One, we're talking about today's relevance, and we're talking about the historical relevance, Ranjit. Thank you, Uncle. I got it, but somebody asked Got it? me. You're clear? Thank you so much. I got it, but it's asking. All right. Okay, if there's anything, you can stop me and ask me. All right. Now, the next one which I wanted to pass on here is, you see the map there. You find the wilderness of Shur here, the wilderness of Etham. Yesterday, when I was explaining to you, I told you Etham is a large region. And I told you before the crossing of the Red Sea, after the crossing of the Red Sea also, you will have Etham. So that is what this map shows. और इस नक्शे को जो मैंने आपको जैसे कल भी बताया था और आज भी मैं इसको बताना चाहता हूं कि जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि इस्लाम का जो जगह है वह देश है वो बहुत ही बड़ा है उसका सीमा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो लाल समुद्र के पहले और लाल समुद्र के बाद तक जो ईताम का सीमा हमको दिखाई देगा, इसलिए मैंने कहा था कल कि ये बहुत बड़ा एक समय सीमा रखने वाला एक जगह है ईताम का जंगल। Yeah, you see, somewhere here is where Etham is. You see Pihahiroth, where you have the arrow. This is Pihahiroth. Etham is somewhere here. And you see here the wilderness of Etham. So on this side, you have Etham. On this side of this Red Sea, you have Etham. So it is significant. And that's the reason that's what this map shows. और ये जो है एक बहुत ही रुचियात्मक बात है, बस इसको समझने की बात है कि जो सुक्कोत और पीहाहीरोत के बीच में इधर में लाल समुद्र के पहले यहाँ पर ईताम है। लेकिन हम देखते हैं कि ईताम का इतना सीमा है, इतना उसका समय जो सीमा है कि उस लाल समुद्र के बाद भी हम देखते हैं इधर में इस पार भी ईताम का जंगल हमको दिखाई देता है। इसलिए ईताम जो है एक बहुत बड़ा सीमा रखने वाला एक जगह थी। All right. Okay. Now, what is the lesson for us from Pihahiroth? What do we learn from the experience of this station called Pihahiroth? और चलिए आज हमको इस स्थान से पिहाहिरोत जगह से हमको समझने के लिए हमको हमारे जीवन में लागू करने के लिए ऐसी कौन सी शिक्षा हमको मिलती है, पिहाहिरोत से हम क्या सीखते हैं, इसको देख लेते हैं। Now, at Pihahiroth is when the children of Israel are now getting into the desert area. They're getting into a wilderness journey, which is the next phase in their life. और हम इस बात को जानते हैं कि अभी इस पिहाहिरोत स्थान से जब इजरायली लोग आगे को कूच करते हैं तो हम जानते हैं कि वो लोग अभी इस जंगल के मार्ग को जंगल की यात्रा को शुरुआत करने वाले हैं, जंगल में प्रवेश करने वाले हैं पिहाहिरोत स्थान से। All right. So far, their innocent way, that if you take a child, the child's innocent way, the child's learning, the protection of the parents, the home that is there, all that they're losing, they're growing into adults. And then a child is stepping into this world. That is what Pihahiroth signifies. और जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि एक बच्चे को जब बचपना उसका होता है और वो ना समझ होता है, उस समय में क्या होता है कि बच्चे जो है माँ बाप के ऊपर आश्रित रहते हैं, माँ बाप के ऊपर ही भरोसा रखते हैं, माँ बाप को ही सब कुछ जानते हैं। लेकिन अभी हम जानते हैं कि उनका जो इजरायलियों का जो बचपना व उनका जो ना समझता अभी यहाँ से दूर होती है, वो अपने आप स्वयं पर निर्भर होना, स्वयं पर आश्रित होना सीखते हैं यहाँ से पिहाहिरोत स्थान से जब वो जंगल में प्रवेश करते हैं। All right. Now, as I told you yesterday, Ramesses is when a child is born into this world from the mother's womb. और जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि रामेसेस एक ऐसा स्थान है जहां पर एक नया बच्चा जैसे कि माँ के गर्भ से उसका जन्म हुआ हो, वो है रामेसेस। Yes, Sukkot is when a child is given all kinds of protection by the parents in the house. और उसके बाद में हमने सुक्कोत को देखा था। सुक्कोत एक ऐसा स्थान है जहां पर एक बच्चे को संपूर्ण सुरक्षा उसके माँ बाप के द्वारा उसको मिलती है।
Etham is when a child is wanting to be independent and he is going to take the first step to be an independent person. That is what Etham signifies. और ईतम हमको यही दिखाता है, वह यही सिखाता है कि यहाँ पर आकर के एक बच्चा जो एक बार माँ बाप के भरोसे पर होता है, अभी वो अपने ऊपर आश्रित होकर के अपना कदम को बढ़ाना, अपने ऊपर स्वतंत्र होने के लिए, स्वयं पर स्वतंत्र होने के लिए, स्वयं पर स्थिर व आश्रित होने के लिए अपना कदम को बढ़ाता है। ईथाम ये बात को दिखाता है। I hope you remember yesterday when I spoke about Etham, I said the significance of Etham is a seashore. और जैसे कि मैं आशा करता हूं कि मैंने आपको बताया था कि जो ईथाम का जो एक विशेषता यही है कि ईथाम जो है समुद्र का तटीय स्थान था। All right. Now, when you go to a seashore, I think most of us, I'm hoping most of us know what a seashore is, and we have visited a seashore. When you go to a seashore, what normally happens? और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि हम में से सभी लोग जानते हैं कि समुद्र का तटीय इलाका व समुद्र का जो किनारा होता है वो कैसा होता है, और हम लोग जाकर के वहां पर नजारा को भी देखा है। जब हम जाते हैं समुद्र के किनारे तो वहां पर क्या होता है, क्या विशेष होता है, लगता है हमको? Yeah, for example, you go to a beach. What happens when the children or when the young people or the people who've gone there first to the beach, what do? They want to wet their feet in water. So they go closer and closer and closer to the water. They wait for the waves to come to the sand so that their feet touches the water. Remember, I hope you remember that, right? और मैं ऐसा करता हूं कि आप इस बात को जानते होंगे कि जब बच्चे जो पहली बार समुद्र के किनारे पर जाते हैं, समुद्र के बीच पर जाते हैं घूमने के लिए, तो सबसे पहला काम उनके मन में इच्छा क्या होती है कि वो जाकर के समुद्र के किनारे पर जाकर के अपने पैरों को समुद्र के पानी में उनको भिगोना चाहते हैं। वो और नजदीक जाएंगे, नजदीक जाकर के इंतजार करेंगे कि जो समुद्र का पानी का जो हेड़ा है वो आए और उनके पाँव को जो है पानी जो बालू में जाएंगे, उनके पाँव भीग जाए। यही उनकी इच्छा होती है, चाहत होती है। Yes, and as long as the water comes up to the waves, come up to the feet, it's okay. But when you see a big wave coming, what does the child do? It runs back to where the parents are, to where the elders are. You can visualize that, right? और आप इस प्रकार से अपने मन में एक चित्रण कर सकते हैं कि जब यदि पांव तक पानी है तो वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन यदि जो पानी का जो हेड़ा है यदि वो बहुत बड़ा हो और काफी बड़ा आ रहा हो तो क्या करता है बच्चा? वो सीधा उस स्थान को छोड़ करके सीधा अपने माँ बाप जहां पर रहते हैं उनके पास दौड़ करके आता है। All right, this is the experience at Etham. The children of Israel were facing this experience in Etham. और यही वो अनुभव है, इसी प्रकार का अनुभव को इजरायली लोग ईथाम स्थान पर अनुभव कर रहे थे। But in Pihahiroth, they've grown from a childhood to a maturity to adulthood. They've lost all their innocence. Now they can take rational decisions. So they are stepping into the outside world. That is Pihahiroth. और इसीलिए जब हम पिहाहिरोत में आते हैं तो अभी यहाँ पर वो काफी बड़े हो जाते हैं और वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं और स्वयं का वो निर्णय लेकर के स्वयं पर आश्रित होना सीख जाते हैं, और यही जो है पिहाहिरोत हमको दिखाता है। All right. Now, when we go back to Exodus chapter 14 and verse 2, when you we read that there are two places mentioned apart from Pihahiroth. One is Migdol, and the other is Baal. It's called Baal Zephon. Yes. और जैसे कि हमने निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय दूसरी आयत में हमने पढ़ा था, पिहाहिरोत के अलावा और भी ऐसे दो स्थान हैं, दो नाम हैं, दो जगहों के नाम हैं जो इस्तेमाल इसमें किए गए हैं। पहला है मिगदोल और दूसरा है बाल सपोन। Now, Migdol is a tower. It's like a watchtower, Migdol. और मिगदोल जो है एक शहर पर बना हुआ एक टावर के समान है। All right. And Baal Zephon is the Lord of the North. It is an Egyptian deity. It's an Egyptian god. It's called the Lord of the North, Baal Zephon. और बाल सपोन जो है एक मिस्रियों का
एक जो उत्तरी देवता जिसको वो लोग मानते थे, बाल सपून है। All right. So what is happening in the lives of the children of Israel is it's a newfound freedom, and they are facing, the implication is, the meaning is they are facing some idols in their life. They are going to face some idols in their life. Yeah. और हम यहाँ पर क्या देखते हैं इजरायली लोगों के जीवन में कि अभी यहाँ से हम जानते हैं कि इजरायली लोग जो है कुछ जो मूर्तियों का सामना करने के लिए अभी वो आगे बढ़ रहे हैं। You see Pihahiroth is sandwiched between Migdol and between Baal Zephon. These are Egyptian deities. All right. So they are sandwiched between this. They are exposed to the Egyptian deities, and that is where Pihahiroth is. That's where the children of Israel are. और जैसे कि हमने पहले भी देखा था कि बाल जपोन और मिगदोल के बीच में पिहाहिरोत है, और अभी उनको इस प्रकार से उनको अनुभव होता है व उनको सामना करना पड़ता है कि जो बाल जपोन व उनकी जो देवीय जो शक्तियां हैं व उनकी प्रक्रिया है उनका उनको सामना करना पड़ता है। All right. So from a protected environment, from a childhood, they're maturing, they're stepping into an unknown world, they're stepping into the wilderness, they're stepping to some place that they don't know, and there is something that is going to face them in the place where they're going to step into. और अभी हम इस बात को देखते हैं कि अभी जो है वो एथाम से जाकर के जब पिहाहिरोत में आते हैं तो ये जगह दिखाती है कि वो अभी अपने बचपना को छोड़ करके, वो अभी कि हम ना समझे कुछ नहीं जानते, इसको छोड़ करके अभी वो समझदार बन रहे हैं, अभी वो अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ऐसे स्थान में आकर के वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो बढ़ते हैं तो उनको किसी का सामना करना पड़ता है। What are those idols which they are going to face in their journey? और अभी वो कौन सी मूर्तियां हैं जिनका सामना वो लोग अपने जीवन में करने वाले हैं? One of the idols is self-worship, which means we expect people to worship us. In other words, give us more importance than giving importance to God. और पहली बात यहाँ पर है कि वो स्वयं की बड़ाई व स्वयं का आदर करवाना। इसका मतलब दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो वो लोग जो है दूसरे लोगों से चाहते थे कि दूसरे लोग आकर के उनको सामने दंडवत करें, उनको जो है उनको क्या बोलते हैं, उनको मान सम्मान दें, ऐसी वो चाहत रखते हैं। पहली बात यह है कि सेल्फ वर्शिप। We must be careful of these idols that can creep into our lives. मेरे प्यारो, हम सभी को बहुत ही सावधान रहना है, क्योंकि इस प्रकार की मूर्ति हमारे जीवन में भी आ सकती हैं। One of these idols are, I want importance. I want people to recognize me. I want people to talk about me. I want people to talk high of what I'm doing. That is self-worship. We want people around us to keep talking about us. We've got to be careful. That is an idol. मेरे प्यारो, जो है हम हमेशा इस प्रकार से इस बात के बारे में बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि हमारे मन में कई प्रकार के इस प्रकार की एक मूर्ति आ जाती है। वो मूर्ति क्या है कि हम चाहते हैं, हमारे अंदर ऐसे विचार व भावनाएं आ जाती हैं कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरे बारे में बड़ी बड़ी बातें करें, मेरे बारे में जाने, मेरी प्रशंसा करें, मेरे बारे में जाने, सब कुछ मुझे मेरे बारे में लोग जाने व चर्चा करते रहें। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते। प्यारो, बताना चाहते हैं कि ये एक मूर्ति हमारे जीवन में आ जाती है। It's quite natural to feel that way, that we want others to speak about us. It's quite natural. और ये तो सामान्य बात है कि हमारे मन में इस प्रकार के विचार आए कि लोग हमारे बारे में चर्चा करें। But we have to be very careful that it should not become a kind of a self-worship. We want everyone else to focus on us than on God. That we, as believers, we have to be very, very careful. और मेरे प्यारो, हमको विश्वासी होने के नाते इस बात में हमको बहुत ही सावधान रहना है प्यारो, कि कोई भी व्यक्ति जो है अपनी स्वयं की प्रशंसा को ना देखे, बल्कि लोगों को ऐसा करे कि वो उनको देख करके परमेश्वर की प्रशंसा करें। स्वयं की प्रशंसा करवाना व करना एक मूर्ति पूजा के समान हो जाता है।
The second idol can be the worship of money, giving import. Money is important for every person in this world. Money is important. But when we give importance to money and money alone and things which money can do, that becomes another idol in our lives. मेरे प्यारो, हमारे जीवन में एक और जो दूसरी जो आइडल है, जो मूर्ति है, वो है पैसों के लिए ज्यादा महत्व देना, पैसे के बारे में सोचना। आज इस संसार के हर एक व्यक्ति के लिए पैसा बहुत ही आवश्यक है। For money, there are believers who will do many things for money just to make sure they retain their money, they keep their money. They will become like unbelievers in the way that they act. मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से बहुत सारे विश्वासी लोग पैसे के लिए, पैसे को जो है इकट्ठा करने के लिए, जब पैसा उनके पास आ जाता है तो वो पैसे के लिए, पैसे के साथ में ऐसे ऐसे कार्यों को करते हैं जो अविश्वासी भी नहीं करते। Sometimes because of money, we forget the human tendency. God says you got to love one another. As much as you love yourself, you got to love one another. There are only 2 commandments that God, the Lord Jesus Christ, has given us in the New Testament. और हम इस बात को जानते हैं, कई बार, बहुत बार इस प्रकार से हमारे जीवन में होता है कि जब हमको बहुत सारा रुपया पैसा मिल जाता है तो हम मानवता को भूल जाते हैं। याद रखना, प्रभु ने हमसे क्या कहा? प्रभु ने हमको 2 ही आज्ञा दिया है। हमको हमारे व्यक्ति से, हमारे भाइयों से, बंधुओं से, हमको सबसे प्रेम रखना है। The Lord has given us 2 commandments and said on these 2 commandments, all the other commandments hang. And what are those 2? First is to love the Lord our God, and next is to love your neighbor. These are the 2 commandments that God has given us. And many times money blinds us when we have to follow these 2 commandments given by the Lord Jesus Christ. मेरे प्यारो, हमको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो कौन सी आज्ञा दिया गया है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आज्ञा हमको दिया गया है वो 2 आज्ञाएं हैं जिसमें सारी व्यवस्था परिपूर्ण होती है। वो 2 आज्ञा कौन सी है प्यारो? पहली है कि परमेश्वर को हम अपने पूरे मन से, तन से प्रेम करें, और दूसरी बात है अपने समान अपने पड़ोसी से भी प्रेम रखें। मेरे प्यारो, कई बार हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है, पैसा हमारे आंखों को अंधा कर देता है कि हम इन आज्ञाओं को पालन करें जो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमको दी हैं। There's nothing wrong in having money. There's nothing wrong with what money can buy. But when money blinds our eyes, then we lose that love that we have for God, the love that we have for fellow brethren, for fellow people. And it is only money and money and money. That should not become an idol. And that is what we understand from here. मेरे प्यारो, जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसा होना, धन का होना कोई बुरी बात नहीं है, और बहुतायत के साथ धन होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वो पैसा हमको जो है अंधा कर देता है, और हम ना तो परमेश्वर को देख पाते हैं, ना हम अपने प्रिय भाई बंधुओं को देख पाते हैं, ना हम जो जिनकी जरूरतमंदों को नहीं देख पाते हैं, और केवल पैसा 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 ही दिखता है। यहाँ पर आ जाता है मेरे प्यारो कि जब आप अपनी सहभागिता को, आप अपनी संगति को परमेश्वर से खो देते हैं। Another idol that can affect a believer is power. और तीसरी एक मूर्ति जो हमारे जीवन को जो है नाश कर सकती है वो है शक्ति व सामर्थ्य। Now this power is not, we're not talking about the worldly power, although it may refer to worldly power, but it is power in the Christian circles, in the church circles. और ये जो पावर, जो शक्ति की बात यहाँ पर उद्गृत हुई है, वो शक्ति ये नहीं है कि जो संसारिक शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं हम नहीं, परंतु ऐसा हो सकता है कि संसारिक शक्ति के रूप में इसको हम दिखे, लेकिन ये मसीह जगत में, कलीसियाओं में, लोगों के बीच में इस शक्ति को हम लोग लागू होती देखते हैं। When a brother or sister is given responsibilities in the church to do that, that should not get into the head and say, because I've got that responsibility, I am above the rest of the people, I can dictate and others will follow. That is power and that is idol.
और कई बार मेरे प्यारों हमारे जीवन में इस प्रकार से होता है, हम लोग सोचने लगते हैं कि एक कलीसिया में किसी व्यक्ति को जो है किसी कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है, तो उस समय में हम जो है इस प्रकार से वो व्यक्ति सोचने लगता है, अरे मेरा नियुक्ति तो सारे लोगों के ऊपर हुआ है, मैं सबसे बड़ा हूं और जो मैं कहूंगा मेरा उन कहे के को सारे लोग उसका निर्देश का पालन करेंगे, और इस प्रकार से मैं अपने मन में वो शक्ति का प्रयोग करता हूं और अपने आप को शक्ति सामर्थ्यवान समझता हूं। There are some leaders in our churches, in our brethren assemblies, who want so much of importance that wherever they go, whatever they do, they want people to follow them, they want people to listen to them, they want people to do only things which they like. Brothers and sisters, that is an idol in our life. मेरे प्यारो, इस प्रकार से आज हमारे जो ब्रदरन सर्कल में भी हम इस बात को देख सकते हैं, ब्रदरन कलीसियाओं में भी आज हम इस बात को देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रकार से सोचते हैं, इस प्रकार से चाहत रखते हैं कि जहां कहीं भी जाएं वो जो कुछ भी करें वो तो हमेशा वो यही चाहते हैं, जो कुछ मैं कहूं लोग उसको सुने, उसी को करें, और जैसा मैं कहूं वैसा ही करें। मेरे प्यारो, यह एक मूर्ति हमारे जीवन में जो राज कर रही है। Sometimes it happens that the elder and the elder's wife, they will rule the whole assembly. The elder's wife will be behind the scene, but the elder will be dominated by the wife and do exactly what the wife tells him to do in the church, and everything that they do only people have to listen to. That is a dangerous situation. That is where power comes into play, and that is an idol. मेरे प्यारो, जो है आज कलीसियाओं में हम इस बात को देख सकते हैं, कई कलीसियाओं में ऐसी बात होती है कि केवल जो प्राचीन होते हैं, प्राचीन और उसकी पत्नी जो है इस कलीसियाओं को जो है अपने अधिकार में ले लेती है। ऑल्दो ये बात सत्य है कि वो प्राचीन की जो पत्नी होती है वो सामने नहीं आती है, लेकिन जो प्राचीन होता है वो पत्नी के अधिकार में आकर के पूरी कलीसिया पर अपना अधिकार को जताता है। मेरे प्यारो, ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति है जो आज हमारे जीवन में एक मूर्ति जो हमारे जीवन में इस परिस्थिति को लेकर के आई। These things happen naturally because staying in one church and an assembly for many, many years, it makes them so acquainted, and without their knowledge, this gets into their head and it's some kind of a domination. It is only Christ who can dominate, and no human being in any church. We have to be very, very careful about this idol of power that can come into me. It can come into any one of us. We have to be very, very careful. मेरे प्यारो, हमको इस बात के प्रति बहुत ही ज्यादा जो है सावधानी बरतना होगा, क्योंकि हमारे अंदर इस प्रकार की एक जो मूर्ति या इस प्रकार की पावर वाली व शक्ति की मूर्ति हमारे अंदर आ सकती है। क्योंकि ये तो सामान्य बात है कि जब हम यदि कलीसिया में एक लंबे अरसे से लंबे समय से उसमें हैं तो इस प्रकार की एक बात आ सकती है। लेकिन मेरे प्यारो, ये मेरे पास भी आ सकती है, ये आपके अंदर भी आ सकती है ये मूर्ति को। लेकिन हमको इस बात को समझना है कि कलीसिया के अंदर केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही अपना अधिकार उसमें रख सकते हैं, कोई भी मनुष्य जाति इसको नहीं रख सकती है। इसीलिए इस मूर्ति से हमको बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतना है। Brothers and sisters, I didn't actually prepare to talk about so much about the idols, but as I was talking about it, what came to my mind, I trust the Holy Spirit led me to say that, and that is why in all humbleness, I shared it with all of us for our understanding and education. और हमारे अध्ययन व हमारे भले के लिए इस बात को मैंने पहले से तैयारी नहीं की थी कि मैं मूर्ति के बारे में इतना ज्यादा कहूं, लेकिन मैं पवित्र आत्मा को धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा के द्वारा शक्ति पाकर के और पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर के ये बात मैंने बोली है, ये जिससे कि हमारे जीवन के लिए, हमारे अध्ययन के लिए लाभकारी हो। Okay, this Pihahiroth is a place where now the children of Israel are traveling in a narrow path. They're traveling in a very narrow path. और अभी हम इस बात को आते हैं अपनी कहानी पर कि पिहाहिरोत एक ऐसा स्थान है यहाँ से इजरायली लोग जो है बहुत ही छोटे व सकरे रास्ते से होकर के अभी यात्रा कर रहे हैं। They can travel only in one direction. और अभी इजरायली लोग जो है केवल एक ही दिशा में अपनी यात्रा कर सकते हैं।
And after they travel from Pihahiroth, they will come to a large place which will be able to contain all the Israelites. I mean, yesterday we saw close to about 20 lakh of people who were traveling to go to the promised land. From this narrow place of Pihahiroth, they were now going to step into a large place before they cross the Red Sea. और अभी मेरे प्यारों, हमको ये बात समझने की जरूरत है कि अभी इजरायली लोग जा करके इस छोटे से व सकरे रास्ते से और एक ही रास्ते से जा करके एक ऐसे स्थान की ओर बढ़ रहे थे, और एक ऐसे स्थान के इतना बड़ा स्थान का जगह की ओर बढ़ रहे थे जहां पर ये सारे लोग, जितने लोग यात्रा कर रहे थे, जैसे कल हमने इसकी गणना किया था कि 20 लाख लोग, लगभग लगभग 2 मिलियन आदमी और पुरुष सभी लोग जो यात्रा कर रहे थे, एक ऐसे स्थान पर पहुंचने वाले थे जहां एक साथ वो एक जगह पर रह सके। All right. Now, yesterday, when I started off about Pihahiroth, I told you one of the meanings of Pihahiroth is the opening of a gorge, which means from a narrow place, it comes into a large opening. That is the significance of Pihahiroth. और जैसे कि मैंने आपको बताया था, कल भी याद दिलाया था कि पिहाहिरोथ का मतलब यह है कि अभी एक सकरे मार्ग से होते हुए ये सकरा मार्ग जाकर के एक बहुत बड़े चौड़े रास्ते में, चौड़ी जगह में वो खुल जाता है। यही मतलब है पिहाहिरोथ का, जो मैंने आपको बताया। So from this narrow path of Pihahiroth that they are traveling, they are now going to come into a huge place which will sufficiently be able to cater to all the 20 lakh people or the 20 lakh people who were traveling. और अभी वो इसी मार्ग से होते हुए, एक छोटे मार्ग से होते हुए ऐसे स्थान में पहुंचने वाले हैं जो उनको, जितने जो 20 लाख लोग अर्थात 2 मिलियन आदमी, वो वहां पर बड़े ही आराम से वहां पर अपने डेरे खड़े कर सकते हैं और वहां पर रह सकते हैं, रुक सकते हैं। एक इतने बड़े स्थान में पहुंचने वाले हैं लोग इस छोटे व सकरे रास्ते से पिहाहिरोथ से होते हुए। All right, so that is a little background about Pihahiroth. और ये था छोटा सा जो है बैकग्राउंड व पृष्ठभूमि पिहाहिरोथ। All right, I stop here, and God willing, next week we will study about the crossing of the Red Sea. और यह इसके साथ ही आज के मैं यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, और बाकी का जो बातें हैं हम लोग अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से जो है इजरायली लोग लाल समुद्र को पार करते हैं। All right, and may I